को कितना सुंदर रूप है, तेरा साथ है ठंडी छाया, बाकी दुनिया धूप है। जब जब भी इसे पुकारूं, जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसके निहारूं मैं। मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, हो मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, हो मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, हो मेरा शाम आ जाता मेरे सामने। ઉગ્રસેન રાજા પાસેથી છલ કમળથી એનું રાજ્ય પડાવી દીધું હતું અને એ રાજ્ય કરતો હતો. એક સમયે રાજા કંસ પોતાની બહેન દેવકી અને તેના પતિને જ્યારે મૂકવા જાય છે ત્યારે અચાનક આકાશવાણી થાય છે. આકાશવાણી એટલે શું? તો આકાશમાંથી અવાજ આવો. એ આકાશવાણીમાં કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ આ દેવકી નો 8મું સંતાન એ તારા મૃત્યુનું કારણ બનશે. પછી એ સમયે કંસ રાજા વાસુદેવનું વધ કરવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે. ત્યારે દેવકી તેમને મનાવે છે કે આ મારા પતિનો તમે કરશો નહીં, એનો વધ કરશો નહીં, પરંતુ મારા જે 8મું સંતાન હોય એનો તમે વધ કરજો. ત્યારબાદ રાજા કંસ એ દેવકી અને વાસુદેવને બંનેને કારાવાસમાં પૂરી દે છે. દેવકી અને વાસુદેવના 7 સંતાનોનું કંસ વધ કરી દે છે વાળાપતિ. પછી જ્યારે 8મા સંતાનનો જન્મ થવાનો હોય છે ત્યારે અચાનક કારાવાસમાં પ્રકાશ રોશની પ્રગટ થાય છે અને ત્યાં 4 ભુજાવાળા ભગવાન વિષ્ણુ ભગવાન પ્રગટ થાય છે. એક હાથમાં શંખ, બીજા હાથમાં કમળ, એક હાથમાં સુદર્શન ચક્ર અને એક હાથમાં ગદા. એવા સાક્ષાત ત્યાં ભગવાન પ્રગટ થાય છે અને દેવકી અને વાસુદેવને કહે છે કે 8મા સંતાન તરીકે હું તમારી સુખે જન્મ લેવાનું છું. એમ ત્યારબાદ 8મા સંતાન તરીકે આમ કૃષ્ણ ભગવાનનો જન્મ થાય છે અને કૃષ્ણ ભગવાનનો જન્મની સાથે દેવકી અને વાસુદેવને ભગવાન કહે છે કે તમે અમને વૃંદાવન કહો. ત્યારબાદ વાસુદેવ કૃષ્ણ ભગવાન આ બાળ સ્વરૂપ કૃષ્ણ ભગવાનને એક ટોપલામાં મૂકી અને માથે લઈ અને વૃંદાવન જવા નીકળી જાય છે, જ્યાં આપોઆપ એક કારાવાસના તાળા પણ ભૂલી જાય છે. સૈનિકો પણ ઘોર નિદ્રાની અંદર તમે મારા પતિને સંતાઈને માર્યા છે તેમ તમારું મૃત્યુ પણ કોઈ વ્યક્તિ સંતાઈને થશે. આગળ વાત કરીએ તો કૃષ્ણ ભગવાનનો પુત્ર શ્યામ, જેનું નામ કૃષ્ણ ભગવાનનો પુત્ર જેનું નામ શ્યામ અને એના મિત્રો એક કૃત્રિમ પેટ બનાવી અને દુર્વાસા ઋષિ મુનિ પાસે જાય છે. કે કૃષ્ણ ભગવાનનો જે પુત્ર જેનું નામ છે શ્યામ, એના સખા મિત્રો સાથે કૃત્રિમ પેટ બનાવી અને દુર્વાસા મુનિ પાસે જાય છે. દુર્વાસા મુનિને કહે છે કે ભાઈ આ યુવતીને પુત્રીનો કે પુત્રનો જન્મ થશે. દુર્વાસા મુનિને એ સમયે લાગ્યું કે ભાઈ આ તો મારી મસ્કરી કરે છે, મારું અપમાન કરે છે, એવું સમજી નાશ કરશે. હકીકતમાં એક કૃત્રિમ પેટ જ્યારે છીણીને જોવામાં આવે છે ત્યારે અંદર સામેલું હોય છે.
અને આ વાત પછી કૃષ્ણ એના દાદા ઉગ્રસેનને કહે છે. એટલે ઉગ્રસેન પછી એ સામેલાનો ભૂક્કો કરી કાઢે છે અને એ ભૂક્કો નદીમાં દેવડાવી દે છે. એ સદા થોડો એક લોખંડનો ટુકડો બચી ગયો હોય છે અને નદીની અંદર એક માછલી ગરી જાય છે. એ માછલીને જ્યારે માછલીમાં પકડે છે ત્યારે એના પેટમાંથી આ લોખંડનો ટુકડો નીકળે છે અને એની અંદરથી કૃષ્ણ ભગવાન પગ પર પગ ચડાવી અને જ્યારે બેઠા હોય છે ચૂંટાના વૃક્ષની નીચે ત્યાં એક પેલો ભગવાનની આંખ સમજી અને તીર ચલાવી અથવા જે ધજા ફરકાવવામાં આવી છે કે ધજા જે દિશામાં પવન હોય એ પવનની ઉલટી દિશામાં ધજા ફરકે છે. એ મંદિર ઉપર ધજા અને એનો જે ઘુમ્મટનો પડછાયો જમીન પર તમને જોવા મળતો નથી. જયેશ્વર માટે આપણે જોરદાર તાળી પાડી દઈએ. શું જોરદાર કહ્યું છે આપણને આમ જોઈએ ને કે આપણને और ये कहानी शुरू होती है मथुरा राज्य से। उस दिन पूरा मथुरा राज्य सुंदर रंग से सजा हुआ था और क्यों ना हो राजा उग्रसेन की पुत्री देवकी का विवाह राजा वसुदेव के साथ होता है।
विवाह के दूसरे दिन जब वर वधू के विदा करने की घड़ी आई तो कंस ने कहा कि मैं खुद बहन देवकी और वसुदेव को उनके घर तक रथ में खुद चलाकर छोड़ने ले जाऊंगा। और अचानक एक आकाशवाणी होती है, कंस, सावधान हो जा, देवकी का पुत्र 8वीं संतान ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। और ये सुनकर कंस देवकी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, बहन तेरा वध करके ही मैं इस आकाशवाणी को गलत सिद्ध कर दूंगा। वसुदेव जी कहते हैं, हे कंस तुम ये क्या कर रहे हो? आखिर देवकी तुम्हारी बहन है, तुम इतना क्रूर कैसे हो सकते हो? तब कंस ने कहा, वसुदेव तुमने सुना नहीं, मेरे प्राणों की रक्षा के लिए मुझे मेरी बहन देवकी को मारना ही होगा। वसुदेव जी कहते हैं, हे कंस तुम एक बहुत बड़े राजा हो और एक स्त्री की हत्या का पाप अपने सर क्यों ले रहे हो? हम सबको तो मरना ही है, लेकिन देवकी आपकी बहन निर्दोष है, उसको मारने का पाप अपने सर मत लो। कंस गुस्सा हो जाता है, नहीं नहीं, और वसुदेव उनको वचन देते हैं, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कंस कि जब भी हमारी कोई संतान होगी मैं तुम्हें उसे सौंप दूंगा, फिर तुम उसे जो चाहे कर लेना। कंस ने कहा, वासुदेव मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन तुमको हमारी निगरानी ही में रहना होगा। और ऐसा कहके कंस ने सैनिकों को आवाज लगाई, सैनिक जो आज्ञा महाराज, देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया जाए। समय बीतता गया, समय बीतता गया और वो क्षण आ ही गया, और वो क्षण आ ही गया जब देवकी ने अपने प्रथम पुत्र को जन्म दिया। और ये बात सुन के ही कंस अति क्रोधित होकर कारागार में उनसे मिलने जाते हैं। एक के बाद एक कंस ने उनके सारे यानी कि 7 संतान की हत्या कर दी, और अब देवकी और वसुदेव की पीड़ा का कोई अंत नहीं था। समय बीतता गया और अब देवकी ने अपनी 8वीं संतान को जन्म दिया, और अचानक आकाश जो है वो प्रकाशमय हो गया।
और वो क्षण आ ही गया जब भगवान मानव स्वरूप लेके आ गए। देवकी और वसुदेव उनको नमन करते हैं। वो दोनों अपनी 8वीं संतान को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और वसुदेव जी ने कहा, प्रणाम। आपके जन्म की खबर सुनते ही कंस आपकी हत्या कर देगा। और भगवान ने कहा, आपके कष्ट दिनों का अंत करने के लिए ही मैंने ये मानव अवतार धारण किया। भगवान वसुदेव को विनती करते हैं, आप मुझे अपने मित्र नंद के घर छोड़ आइए और वहाँ यशोदा ने जिस बालिका को जन्म दिया है उसे यहाँ ले आइए। और इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण भगवान अंतर्ध्यान हो गए और अचानक एक तेज बारिश की गड़गड़ाहट हुई और उनके बीच वसुदेव की बेड़ियां अपने आप खुल जाती है और वसुदेव जी बालक को लेकर नंद के घर निकलने जाते हैं। ये जो सैनिक होते हैं वो गाढ़ निद्रा में चले जाते हैं और वसुदेव जी निकल जाते हैं। बारिश के बीच में वसुदेव जी बालक को लेकर नंदी के घर जाते हैं। हे भगवान, मुझे नंदी के घर जाने के लिए ये नदी पार करनी पड़ेगी। अब भगवान आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। और ये कहाते ही नदी ने भगवान के लिए रास्ता बना दिया। वसुदेव जी सुरक्षित होकर नदी पार कर गए और आखिरकार नंद के घर पहुंच ही गए। वसुदेव जी ने चुपके से शिशु को रखकर बालिका को लेकर यहाँ पे कारागार में वापस आ गए और ये बात सैनिकों को सूचित हो गई कि देवकी ने अपने 8वें पुत्र की जन्म दे दिया है। ये बात की सूचना देते हुए सैनिक कंस के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि देवकी ने अपने 8वें संतान के जन्म दे दिया है। और कंस क्रोधित और अचानक एक देवी प्रकट हो गई और देवी ने गुस्से से कहा, हे मूर्ख कंस, ये निर्दोष बालक की हत्या करके तुम्हें कोई लाभ नहीं होने वाला। ये प्रभु की इच्छा का दुस्साहस मत करो। ये इतना कहकर देवी जो है वो अंतर्ध्यान हो गई और देव कंस है वो वापस अपनी जगह चले जाते हैं क्योंकि और इसी तरह श्री कृष्ण भगवान ने जन्म तो ले लिया था लेकिन दूसरी जगह पे और दूसरी जगह यानी कि आखिरकार गोकुल में नंद के घर जब गोकुलवासियों को पता चला कि श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है, नंद के घर एक लाडला हुआ है, तो वो सब नंद जी के घर श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाने के लिए नंद जी के घर पहुंच जाते हैं। आज
सोने की सागर में चांदी की पालकी, यशोमती झूला जय इस तरह वसुदेव जी वाले नंद के घर श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है। और हमारे श्री कृष्ण भगवान जैसे जैसे बड़े होते गए उनकी नटखट लीला भी बढ़ती गई और वो यशोदा जी को बहुत ज्यादा तंग करते थे। तो देखते हैं कैसे तंग करते थे। अपनी मैया यानी कि यशोदा माता जी को बहुत तंग करते थे, लेकिन वो उनके लाडले भी थे। तो हम सब जानते हैं कि यशोदा माता के लाडले थे और जैसे बढ़ते गए उनकी नटखटियाँ बढ़ती गई। हम सबको पता है कि श्री कृष्ण भगवान को जन्माष्टमी के दिन भोग लगाया जाता है ना, तो उनकी सबसे प्यारी चीज कौन सी होती है पता है? या तो क्या वो माखन दुकान से लाते थे, शॉप से लाते थे? वो चोरी करके खाते थे, है ना? तो श्री कृष्ण भगवान कैसे चोरी करते थे ये हमें श्री कृष्ण भगवान खुद ही दिखाएंगे, वो कैसे माखन की चोरी करते थे। Twinkle, twinkle, little star, कृष्णा मेरा सुपरस्टार। सूरज चांद सितारे गाते, सूरज चांद सितारे गाते, नंदलाला की जय जयकार। वृंदावन में रहता कन्हैया, कृष्णा कहे तो कोई बंसी बजैया। वृंदावन में रहता कन्हैया, कृष्णा कहे तो कोई बंसी बजैया। वंडरफुल इसका दरबार, वंडरफुल इसका दरबार, नंदलाला की जय जयकार। थोड़ा थोड़ा गोरा, थोड़ा थोड़ा काला, सूरज मामा से, चंद्र मामा से ही प्यारा, कान्हा है हमारा। थोड़ा थोड़ा गोरा, थोड़ा थोड़ा काला,
जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी बिजली हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी बिजली हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। प्यार में डूबी प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सोई। प्यार में डूबी प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सोई। दुनिया गए है वो अनजानी, सब कह गए है प्रेम दीवानी। कितना जिंदगी में भूल के हाल बदल, कितना दीवाना की जब तेरा हो जोगी। किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना। હવે એ નાટક લઈને વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી સમક્ષ આવી રહ્યા છે. ગિરીશ સર અને જયેશ સરનું આમંત્રિત કરીશ કે એમના વિદ્યાર્થીઓ લઈને સ્ટેજ ઉપર આવે. तुम यहीं रहो श्याम सखा।
करवाऊंगी। हाँ, ये क्या बात हुई मम्मी? खबरदार जो मुझे मामी कहो, मैं तेरी काकी हूँ काकी। काकी होकर ऐसा करती हो? हमने तो कभी ऐसी काकी नहीं देखी। काकी तो प्यार से गोद में बिठाती है, माखन खिलाती है और कहती है और खा मेरे लल्ला और खा। अब बहुत माखन खा लिया, अब तुझे मार खिलवाऊंगी मार। अभी जाती हूँ यशोदा के पास, चल। क्यों रे, अपने घर ले जाकर माखन क्यों नहीं खिलाता? यशोदा तो मानती ही नहीं कि उसका छोरा माखन चोर। आज देखती हूँ तो यही बता रहे। मैं अभी जाके यशोदा को लेकर आती हूँ और उससे पूछती हूँ कि तू माखन चोर है कि नहीं। बड़ा आया माखन चुराने वाला, माखन चोर। अरे यशोदा बहन, अरे ओ नंदरानी जी, अरे ओ कान्हा की मैया, अरे कहाँ हो यशोदा बहन? अरे ओ यशोदा बहन, अरे ओ नंदरानी जी, अरे ओ कान्हा की मैया। क्या हुआ मालती बहन, अंदर आ। मालती अंदर आने के लिए नहीं आई है। हाँ, मालती तो तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आई है। कहाँ? अपने घर, और कहाँ? जहाँ मैंने तुम्हारे उस माखन चोर को बांध के रखा है। जब अपनी आंखों से देखोगी तब तो मानोगी कि तुम्हारा छोरा पक्का माखन चोर है। हाँ। अरे अरे, ये तुम क्या कह रही हो बहन? वो चपल है, नटखट है, पर चोर क्यों होने लगा? उसके अंदर माखन की कमी है क्या कि वो तुम्हारा माखन चुराएगा? तो चलकर देख लो, हाथ कंगन को आरती के। पर मैं क्यों चलूं? मुझे पता है वो तुम्हारे घर नहीं है। मैं आज तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। हाँ, रंगे हाथ पकड़ा है मैंने उसे आज। अरे तुम मेरे साथ अंदर तो आओ। लो, ये रहा मेरा कान्हा। हाल दिया। काला मम्मी, हे मामी, कहा ना मैं तेरी काकी हूँ। कब आजा मम्मी? अरे यशोदा, ये कैसा चंगुल है। ચોથી આઠમી છોકરીઓ જે ભૂમિકા બહેન અમે તૈયાર કરાવે છે, તો ચોથી આઠમી છોકરીઓ જે ગરબા માટે છે એ છોકરીને હું અહીંયા આમંત્રિત કરીશ અને ગરબા માટે આપણે સૌ અમને નિહાળીશું. હવે આ જે રાસ થવા જઈ રહ્યો છે એ રાસ પાછળ એક સ્ટોરી છે. ઓકે, જ્યારે રણ જોયું છે ને બધાએ, ડેઝર્ટની અંદર વરસાદ બહુ નથી પડતો, પણ જ્યારે પડે છે ને તો ત્યાંની જે સ્ત્રીઓ હોય છે, લાઈક વુમેન, they celebrate it. And similarly આજે પણ અહીંયા એક સેલિબ્રેશન થઈ રહ્યું છે. તો એ સેમ ઉત્સાહ માટે આજની આપણી જે છોકરીઓ તૈયાર થઈ છે એમણે માત્ર 2 અવર્સમાં આ ગરબો તૈયાર કર્યો છે. તો આવો આપણે આ ગરબો જોઈએ.
नमामि। मङ्गलं गरुडविष्णु मङ्गलाय तनो हरि मंगलाय तनो हरि। मंगलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। खुश हो जाए घर सांवरिया किस्मत को चमका देता। खुश हो जाए घर सांवरिया किस्मत को चमका देता। हाथ पकड़ ले अगर किसी का जीवन स्वर्ग बना देता। ये बातें सोच विचारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। ये बातें सोच विचारूं मैं, तस्वीर को इसके निहारूं मैं। मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, मेरा शाम आ जाता मेरे सामने। हो मेरा शाम आ जाता मेरे सामने। हो मेरा शाम आ जाता मेरे सामने। शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है। शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है। तेरा साथ है ठंडी छाया बाकी दुनिया धूप है। जब जब भी इसे पुकारूं मैं, जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसके निहारूं मैं। मेरा शाम आ जाता मेरे सामने। हो मेरा शाम आ जाता मेरे सामने। हो मेरा शाम आ जाता मेरे सामने। हो मेरा शाम आ जाता मेरे सामने। मटके झटके मारे हैं तू आज शोला तो हम भी फुवारे हैं। तू आसमां पे है तो चांद तारे हैं हम। हटके मटके झटके मारे हैं तू आज शोला तो हम भी फुवारे हैं। तू आसमां पे है तो चांद तारे हैं हम। चाहे दम निकले ये दम है कसम तेरी कसम, तुझे आज छोड़ेंगे ना हम। छटके मारे हैं तू आज शोला तो हम भी फुवारे हैं। तू आसमां पे है तो चांद
सतरंगी, तेरा बड़ा चर्चा तेरा किस्सा अतरंगी। चाहे दम निकले ये दम, है कसम तेरी कसम, तुझे आज छोड़ेंगे ना हम। क्या ये दिल लगी है, क्या ये आशिकी है, मूड में दीवानगी है, क्या ये दिल लगी है, बोलो बोलो बोलो, क्या ये दिल लगी है, क्या ये आशिकी है, मूड में दीवानगी है। आज हवाओं में, आज फिजाओं में कैसी ये तशनगी है। आज मस्ती में तेरी गुम होंगे हम तो, आज ढूंढती में तेरी तुन होंगे हम तो। चाहे दम निकले ये दम, है कसम तेरी कसम, तुझे आज छोड़ेंगे